हाँ जी करिए स्टार्ट। सो सब तो पहला है रिक्वायरमेंट्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एरर स्पॉटिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਵੀ ਇਹ ਮੋੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਰਰ ਸਪੌਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਿਸ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਆਰਟੀਕਲ, ਐਡਵਰਬਸ, ਵੌਇਸ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਟੈਂਸਿਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਟੈਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ, ਡਜ਼, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਡੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੂ, ਵੀ ਡੂ, ਦੇ ਡੂ, ਯੂ ਡੂ, ਔਰ ਐਨੀ ਪਲੂਰਲ। ਪਲੂਰਲ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ। ਸਪੋਜ਼ ਗੀਤਾ and Ram do, Geeta and Ram do, okay। और जो does ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं he, she, it, means singular ना, means one। किसी person ਦਾ name ਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ, ਅੰਕਿਤ does, okay clear। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਈ, ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸਫਿਕਸ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਿਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਗੋਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਵੌਕਸ, ਵੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਪਲੇਜ਼, ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਉਣਾ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, THEY, ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਲੂਰਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਪਲਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ING। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਹੋਣਾ, ਲਾਈਕ going, walking, right, singing, walking, singing, ringing, okay, doing, going, running, standing, blaming, okay, then object। so subject, okay, is ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੂ, he, she, it, okay, and plus ਸਿੰਗੂਲਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਓਕੇ। ਆਈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਆਰ, ARER, ਜੋ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਮੇਸ਼ ਐਂਡ ਗੀਤਾ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਜਦ ਦੇ ਆਰ, ਵੀ ਆਰ, ਯੂ ਆਰ, ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਰ।
ये मैं क्यों मैंशन कर रही हाँ क्योंकि मोस्टली एग्जाम दे विच जिहड़ियां मिसटेक्स आ टेंसिस दे विच हो सकदियां ने लाइक वो लिख देन दे एम दे इज़ ओके तो तुहानूं पता होवे कि आर दे ना लगदा तो ये बहुत मतलब छोटियां मिसटेक्स ने ठीक है जो तुसीं ईजीली फाइंड कर सकते हो। दैन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट द रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हुण इत्थे हैज़ किहदे नाल यूज़ हुंदा ही शी इट सिंगुलर नाल और हैव प्लूरल नाल ओके बाकी सेम आ लाइक रेस्ट लिखिया ना रेस्ट मीनस लाइक इत्थे आना दे वी आई उन्हां नाल की यून आई हैव दे हैव वी हैव एंड यू नाल भी ओके सेम उस तरीके ना जिवें आपां इत्थे प्लूरल दा रूल कीता आर नाल ओके। नैक्सट साडे कोल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट द रूल हैज़ हैव कंटिन्यूअस द रूल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ing बीन एक एडिशन चीज़ आ राइट एडिशनल चीज़ आ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक इत्थे मैंशन की चीज़ सिंस एंड फॉर घबराना नहीं किया है कोई काम लगातार हो रहा पर जिदा कहते 4 दिनों तो हो रहा लाइक ही हैज़ बीन वर्किंग वर्क नॉट किंग वर्किंग इन द हाउस सिंस 4 days सिंस मतलब 4 दिनों तो काम कर रहा ठीक है फॉर 4 days मतलब 4 दिनों लई काम करूगा ठीक है वो असी फॉर उस सेंस विच यूज़ करांगे बट सिंस जो असी यूज़ करते भी कोई चीज़ लगातार तो हो रही है तुसीं अक्सर देखिया होना कि अपने पंजाब विच घरां दे कई मकानां उत्ते जो गुरुद्वारा साहिब दी बिल्डिंग्स लिखे होंदे सिंस 1985 सिंस 1954 सिंस मतलब उदों तो ओके। नैक्सट वी हैव पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट का एक रूल है कि वर्ब की किहड़ी फॉर्म लगनी है सेकंड फॉर्म और इस जो नेगेटिव नाल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंदा वो होंदा डिड भी देखा जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ डू डिड ओके वो उत्थे गया ही वेंट देयर ओके सिंपल आप एग्जाम्पल ले लिए ही वेंट देयर वेंट क्लियर। नेक्स्ट वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस सेम इज एम आर की तरह वॉज यूज होंदा सिंगुलर ना ही शी इट एंड कोई सिंगुलर होवे वर यूज होंदा प्लूरल नाल दे वी आई यू ओके सो ये तुसीं सारे माइंड च रखने एंड लर्न करने रूल्स। दैन वी हैव पास्ट परफेक्ट। हुण इस विच कल्ला हैड आ अगर तुहानूं क्वेश्चन कोई एग्जाम च आया जिस नाल हैड दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है सैकेंड इट मीनस तुसीं उहनूं करैक्ट कर सकते क्योंकि तुहानूं पता है कि हैड दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ होंदी है और हैज़ हैव नाल भी सेम आ। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट सेम उस तरीके नाल जिथे असीं हैज़ हैव बीन यूज़ कर रहे सी इत्थे की यूज़ होना हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओके लाइक सिंस उस तरीके नाल ही जे मैं कहा भी वो उत्थे 4 दिनों तो काम कर रहा सी 4 दिनों तो काम कर रहा सी मतलब कोई पिछली लाइक भूतकाल की गल करने क्लियर। सो शी हैड बीन वर्किंग एट स्कूल सिंस 4 days वो स्कूल में 4 दिनों तो काम कर रही सी क्लियर। सेम वही अगर हैज़ हैव आ गया तो ये नहीं तुसी कन्फ्यूज होना कि हैज़ किस नाल लाना और हैव सेम वही रहना है सिंगुलर नाल है प्लूरल नाल जो आप रूल्स पिछे डिस्कस किए हैं क्लियर। हाँ जी नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स पर एग्जाम्पल्स तो पहले किसी थोड़े रूल्स की तरह डिस्कस करना कुछ एडजैक्टिव प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। देखो एक चीज़ दिमाग च रखनी है वर्ब तो बाद की यूज़ होंदा वा एडवर्ब मतलब वर्ब नूं होर कोई चीज़ डिस्क्राइब कर सके दैट इज़ एडवर्ब ठीक है मतलब वर्ब तो बाद जी चीज़ ऐड होगी दैट इज़ एडवर्ब। वर्ब तो पहला मोस्टली एडजैक्टिव यूज़ होंदा ओके जे मैं कहां अ रैपिड चेंज मतलब चेंज आई आ ठीक है पर रैपिड तेज़ी नाल ठीक है अ रैपिड चेंज इहदा मतलब वर्ब इत्थे चेंज आ
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਪਰ अगर मैं कहां इट चेंजेस रैपिडली तो ये की बन गया एडवर्ब। क्लीयर। अगर इत्थे कोई लिखे इट चेंजेस रैपिड इट मीनस तुसी उत्थे उहनूं पॉइंट आउट कर सकते हो क्योंकि वो एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब्स मोस्टली एल वाई ना एंड ते यूज़ कर लाइक जो एल वाई असीं एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं तो यह बनता है। ओके सो एक ये चीज़ माइंड च रखनी है। सैकेंड एन एक सानू पता कि मूरे यूज़ होंगे वाउल्स के अगे AEIOU बट तुहानू एग्जाम के उत्थे लिखता MLA ज FLA। हुण तुसीं देखो जब मैं बोलदी एम की आवाज़ इदां ना AM ठीक है तो इट मीनस ए की आवाज़ आ तो MLA के अगे भी असी की यूज़ करना NMLA। अगर आ गया FLA जो तुसीं F बोलते हैं तो भी की यूज़ होंदा ए की आवाज़ आती ना F इट मीनस वी कैन यूज़ NFLA। सो एग्जाम के अगर कितने भी सेंटेंस के लिखा होया MLA और FLA और उन्होंने अगे अ पाया होया जो द पाया दैन तुसी उन्हों इस तरीके ना मिसटेक नू फाइंड कर सकते हो एरर नू स्पॉट कर सकते हो। दिस इज़ क्लियर। एंड सैकेंड थिंग जो असी बोलते हैं ONE1 ये मूरे एन कदे भी नहीं लगता। ये भी चीज़ याद रखें। नो डाउट O इज़ वाउल है बट स्टिल वी कांट यूज़ एन बिफोर इट। वाई क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हाँ जी क्योंकि जैसे बोलते हैं वन किते भी थोनू AEIOU की आवाज़ आती है वन नो आती ही नहीं हैगी। सो क्लीयर होया कि साउंड्स के नाल वाउल्स किद्दां आंसर इन्हां दा फाइंड करना। क्लीयर। नेक्स्ट वी हैव he said to Ram that। देखो जी अगर तुसी सॉरी स्पीच की हुई है नॉट वॉइस डायरैक्ट स्पीच की हुई है तो उस विच की होंदा मोस्टली एग्जाम में इदां दे क्वेश्चन पाउंदे आ कि वो लिख देंदे ने ही सैड टू राम दैट। इत्थे कोई भी एरर नहीं। तुसी ये सोचो कि सैड तो बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। देखो उन्हें ये गल कही उन्हें यह गल राम नू कही दोनों च कोई मतलब गलती नहीं है। सो जदों असी सैड लिखते हुन्ने आ तो इदों बाद इत्थे मतलब ऑब्जेक्ट आवे या ना आवे ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट प्रेजेंट हो भी सकता ऑब्जेक्ट की आराम ठीक है और नहीं भी हो सकता। बट अगर असी लिख रहे हैं ही टेल्स ओके ही टेल्स लिख रहे हैं या टेलिंग लिख रहे हैं ही इज़ टेलिंग मी ओके जा सकता ही टेल्स टू मी। ये नहीं कह सकते ही टेल्स दैट इदा नहीं स्टार्ट कर सकते ठीक है। मी तो बाद दैट आ सकता बट असी ये नहीं कह सकते कि ही टेल्स दैट ही इज़ टेलिंग दैट नो ये चीज़ नहीं हो सकती। जदों टेल आना आ तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट होना दसना पैना कि उन्हें किनू कही है गल ओके। ही टेल्स टू मी ही इज़ टेलिंग मी दैट फिर दैट यूज़ करना। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है स्पीच दे विच डायरैक्ट और इनडायरैक्ट स्पीच विच असी करते हैं ओके। नैक्सट जदों आ गया ही आस्क्ड हुण इत्थे मैं लिखिया दैन मस्ट बी पास्ट सफिक्स मतलब जे हुण असी कोई गल कर रहे हैं स्पीच दे विच ही आस्क्ड आ गया आस्क्ड इत्थे की आ पास्ट टेंस यूज़ होया ना वर्ब दी सैकेंड फॉर्म यूज़ हुई आ तो इदों बाद इत्थे जो भी गल होगी वो पास्ट टेंस विच होएगी। अगर उत्थे प्रेजेंट टेंस लग्या होया डू डज लग्या होया हैज़ हैव लग्या होया इट मीनस यू शुड करैक्ट इट ओके उत्थे एरर आ। सो एग्जाम विच कई क्वेश्चन होंदे कि गल ही आस्क्ड तो शुरू करते हैं ही आस्क्ड दैट ठीक है उन्हें पुछया अगे जिहड़ी गल हुंदी वो प्रेजेंट दे विच लिखी हुंदी आ। सो ये चीज़ का ध्यान रखना ओके तो वो भी पास्ट विच ही होएगी अगे गल। क्लीयर। नैक्सट वी हैव सम एग्जाम्पल्स। So first example, Tushar has a far more expensive and luxurious apartment than Rajesh's। कहते तुषार दा बहुत ज़्यादा फार मोर एक्सपेंसिव महंगा तो लग्जरीअस अपार्टमेंट आ राजेश दे अपार्टमेंट नालों। हुण इत्थे राजेश लिखता अपोस्ट्रोफी एस लिखता इट मीनस राजेश दे अपार्टमेंट की गल हो रही है। जिमें असी कदों किसी की पोजैशनस की गल कर रहे हैं भी कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है जिद्दां मैं कहदा
किरण's बुक, मतलब ये बुक किरण दी आ। जे मैं कहां कि दिस बुक बिलोंग्स टू राम एंड दिस इज़ किरण's, मतलब किरण's मतलब पिछे मैं पोस्ट ऑफ एस ना वो करदा, इट मीनस वो उत्थे बुक की गल हो रही आ। बट अगर एग्जाम च इत्थे कल्ला राजेश लिखिया आ रहा, मतलब कि तुषार दा फ्लैट बहुत ज़्यादा महंगा है, अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है राजेश नालों, तो वो गलत हो जो। अगर राजेश लिखिया होया दैन इट विल बी राइट। सो इत्थे नो एरर आ आंसर। ओके, सो एग्जाम तुहानूं इहदा सेंटेंस हो सकदे ए बी सी, तो तुसीं सपोर्ट करना कि बी सेंटेंस विच प्रॉब्लम आ कि सी दे विच आ। ओके, नेक्स्ट आई शैल वेंट देयर। हुण मैं अज फ्यूचर टेंस डिस्कस नहीं किया, आई होप कि तुसी उसनूं पढ़ लोगे, बट मैं फ्यूचर भी दस दिंदी हां। विल शैल लगता है मोस्टली एंड उस दे नाल वर्ब दी की हुंदी है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज़ एरर ओवर है। आई शैल गो, फ्यूचर दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। एक्सैप्शनल कीज़ की आ फ्यूचर परफेक्ट। जे इत्थे होवे आई शैल हैव, आई विल हैव, ओके कुछ ऐदा होवे विल हैव होवे, तो उत्थे आना वा गोन, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। परफेक्ट दे विच चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होवे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस होवे, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होवे, हमेशा वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। सो वो एक एक्सैप्शनल केस आ, बट वैसे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आई शैल राइट फर्स्ट सेंटेंस टू यू, सेकेंड एज सून एज आई शैल रीच देयर। डी ऑप्शन है नो एरर। कहते मैं थोनों लिखांगे, ठीक है लिखांगा एज सून एज, जिन्नी जल्दी हो सके मैं जिमें ही उत्थे पहुँचांगा। ओके, हमेशा याद रखना कि अनटिल लिखिया होवे इत्थे, एज सून एज लिखिया होवे, अनलैस लिखिया होवे, वैन लिखिया होवे, इस बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट दा रूल होना। सो इत्थे आई शैल नहीं आ सकता क्योंकि ये किया फ्यूचर। क्लियर? सो इत्थे सिंपल होना सी आई रीच देयर, एज सून एज आई रीच देयर सिंपल होना सी, क्योंकि सानू पता आई दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म अगर इत्थे ही हुंदा तां इत्थे रीचिस। ओके, उदा ही वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ना एस और ई एस सबजैक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला रूल लग जाना सी। आई रीच देयर सिंपल आ जाना सी। ठीक है, सो शैल नहीं आना, क्यों? क्योंकि साडे कोल आ चारे कंडीशन दे विच वैन लग्या होवे तां भी असीं की यूज़ करदे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना इन्ना बाद विच, बट इत्थे की इत्थे असीं शैल यूज़ किया जो कि फ्यूचर आ। सो दिस इज़ एरर। हाँ जी, एक एग्जाम सानूं आ सकदा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पोंसिबल फॉर डिलेड इलैक्शंस। हुण इत्थे तो मिनिस्टर्स लिखिया, इत्थे आर क्यों नहीं लाया? आपां नूं पता मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा ने, राइट? इत्थे आर क्यों नहीं लाया मैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्यों? क्योंकि इत्थे कौंसिल की गल आ रही है। कौंसिल अपने आप दे विच सिंगुलर आ, मतलब इकट्ठ नूं संबोधित वर्ड है। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर नहीं आना। जे तुसी इत्थे देखो तुहानूं एग्जाम दे विच इत्थे आर लिखिया होया, राइट, तां उत्थे की हो जाना एरर। क्यों? क्योंकि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, ये नहीं क्या मिनिस्टर्स आर। जिथे कौंसिल वर्ड ना यूज़ किया होंदा, ओनली मिनिस्टर्स होंदा, तां असीं आर यूज़ कर सकते सी। क्लियर? हाँ जी, नैक्सट अपने कोल एग्जाम्पल है द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पॉलिस। देखो मैं अगे नहीं पढ़ना की लिखिया, वो तुसी अपने पढ़ लेना, बट मैं नीचे एक हिंट देता सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ਇਹਦਾ मतलब सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम आ। देखिए फिर की आ द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। हुण इत्थे हेल्ड वर्ड लिखिया, जबकि परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी अपने आप दे विच की आ सिंगुलर, ते सिंगुलर ना असीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ना यूज़ की कर दिंदे आ एस और ई एस, तो इत्थे की आ जाना हेल्थ्स। क्लियर? सो एक एग्जाम्पल लई सी। सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला रूल नहीं भुलना कि थर्ड परसन होवे, ही शी इट, जां किसी का नाम होवे, जिवें इत्थे द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो उहदे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ना की यूज़ करना एस और ई एस। नेक्स्ट वी हैव सिंस 2 days I have not taken the breakfast but dinner।
और इत्थे हैगा नॉट एरर, नॉट आएगा वर्ड। हाँ जी, एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिफोर मील आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। मील तो पहला असी आर्टिकल नहीं यूज़ करना, आर्टिकल हुंदा ए एंड द आर्टिकल नहीं यूज़ करना। केड़ा नहीं यूज़ करना? द। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि ब्रेकफास्ट सानू ये थोड़ी पता केड़ा वा, असी द उत्थे यूज़ करते हैं जो सानू कोई चीज़ निश्चित पता होवे भी आपां इसे दी गल करते हैं। ओके, सो ब्रेकफास्ट अननोन भी हो सकता। ओके, सानू नहीं पता कि साडे घरे की बनिया, सो इस करके कोई बिना परपज़ तो मतलब कोई पर्टिकुलर परपज़ होवे उस लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वैसे ब्रेकफास्ट तो पहला, मील तो पहला असी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। हाँ जी, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ली है, मिस किरण एंड सोनिया नीड्स हेल्प फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। मिस किरण ते सोनिया नू मतलब हेल्प चाहिए है, ज़रूरत है हेल्प दी रोड कंस्ट्रक्शन ली। हुणे की सही है, मैं तो लिखिया नीड्स। आपां नू पता मिस किरण एंड सोनिया नू मिला के कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन, मोर देन 1। इट मीनस ये की आ प्लूरल आ, ते प्लूरल ना असी कदे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस और ईएस लाने आ? नो, सो देयर इज एरर। सेकंड, any coalition which contains Miss Jaya as major ally and Miss Mamta as minor partner do not need outside support। फिर मैं इत्थे SVA लिखिया subject verb agreement। देखो इत्थे लिखिया any coalition, हुण जे तुसीं Miss Jaya and a major as a major ally and Miss Mamta as a minor partner, इत्थे तुसीं इत्थे does ला दोगे, ठीक है, तां इह की हो जाऊगा? wrong। बट ये इत्थे हुण इहदे विच कोई एरर नहीं, ध्यान ना। क्यों एरर नहीं? क्योंकि एनी कोलिशन लिखिया, एनी कोलिशन लिखिया, ये अपने आप दे विच की आ? सिंगुलर। की अपने आप दे विच? सिंगुलर। और मिस जाया एंड मिस ममता उसके अंडर आउंदा। कोलिशन हुंदा जिमें गठबंधन, गठबंधन किहदा? मिस जाया दा एंड मिस ममता दा। गठबंधन अपने आप से सिंगुलर आ, तो इत्थे लगना आ डज, ठीक है। अगर तुसी मिस जाया जां मिस ममता नू देख के ते डज लाओगे वो रॉन्ग हो जाऊगा, बट इत्थे एनी कोलिशन नू देख के की लाना? डज लगाना। डू नहीं आ सकता, डू उदों आना जो कोई प्लूरल की गल हो रही है। जे तुसी कहने हो कि मिस जाया एंड मिस ममता 2 पर्सन आ, उन्होंने देख के डू ला दोगे तां भी गलत आ, क्योंकि असीं इन्नी कोलिशन की गल कर रहे हैं। कोलिशन मतलब गठबंधन। गठबंधन हुंदा पोलीटिकल पार्टीज जिवें कुछ इकट्ठियां हुंदियां ने, ठीक है। जो किसी चीज़ों का इकट्ठ हुंदा तो उस इकट्ठ नूं संबोधित वर्ड है एनी कोलिशन, ठीक है। सो ऑफिशियल वर्ड है, एग्जाम विच मोस्टली लिखिया हुंदा एनी कोलिशन। हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव इट इज़ डिफिकल्ट for anyone to pass time, thus no error। ओके, 4 ऑप्शंस ने, देखो इन्हां विच किहड़ी चीज़ इनकरैक्ट आ। मैं पहले मैंशन किया कि टू तो बाद की होना वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। सो इट मीनस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू पास टाइम, ना कि टू पास्ट। ओके, टू गो टू स्कूल, टू वॉक, टू रन। सो मोस्टली टू तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, कोई एक्सैप्शनल केसिस हो सकते जिसे टू तो बाद वर्ब की कोई होर फॉर्म आवे, बट मोस्ट ऑफ द केसिस टू तो बाद की आता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इत्थे की होना सी टू पास टाइम। क्लीयर? दैन शी सैंग वेरी वेल इजंट इट। हुण ये देखो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर मैं पहला गल प्रेजेंट इंडेफिनिट कीती है तो इत्थे मैं लिख सकती सी इजंट इट, जां मैं लिख सकती सी डजंट इट। ओके, बट इत्थे मैं गल की है वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, और वो की आउंदा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दिस इज़ एरर। एरर इत्थे इत्थे आउणा सी डिडंट इट। गल किस च होई आ? पास्ट इंडेफिनिट दे विच। ओके, वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की गल हुई है। इट मीनस जदों असी कहने भी कि ये नहीं है इदा, तो उत्थे भी असी उसे लैंगुएज जो हैल्पिंग वर्ब है उस यूज़ करना। सो सानू पता पास्ट इंडेफिनिट की यूज़ होंदा डिड। डिडंट इट इजन नहीं आ सकता, बिकॉज असी पहला कहदी गल की है पास्ट की। पास्ट के नाल प्रेजेंट के नाल तुसी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्लीयर? जे इत्थे हुंदा शी सिंग्स वेरी वेल, तो इत्थे की होना सी डजंट इट। तो सिंग्स वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस और ई एस एज अ सफिक्स। इट मीनस किहड़ा टेंस आ? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
सो जो तुसी रूल पढ़ोगे फिर थोड़ा ये होर चीज़ां क्लीयर हो जाएगियां। ओके सो बेसिकली तुसी इत्थे याद कर सकते हो कि ये की आ पास्ट विच आ, तां इस करके इत्थे डिडंट आना आ, इज़ नहीं आना, क्योंकि असी क्वेश्चन जिहड़ा बाद विच जिहड़ा पुछदे आ वो भी पास्ट विच ही होवेगा। हाँ जी नैक्सट है माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब। सानू पता कि असी हैज़ गॉट कुछ किसी कोई चीज़ मिली, ठीक है, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं कि ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसलेशन ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ माई वाइफ गॉट अ न्यू जॉब, हैज़ नहीं आएगा। ओके ओनली गॉट। माई वाइफ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ एगो। ओके हैज़ गॉट नहीं आऊगा। जे इत्थे मान लो बहुत सारे लोग देते हैव गॉट किते लिखिया तो इदां दी चीज़ां तुहानूं मिलणगियां। ओके उन्होंने कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, तो उत्थे ओनली की यूज़ करना सी वर्ब दी सैकेंड फॉर्म गेट गॉट। गॉटन सानूं वैसे ही पता कि हैज़ ना की यूज़ कर दिंदे गॉटन, बट वो सेंस विच ही नहीं लिखिया होया। ओके सो मेरी वाइफ नूं कोई चीज़ मिली, तो मिली जे आपां क्या हुंदा ना कि वो ये चीज़ लै चुकी है, तो उस सेंस दे विच चुकी है, ठीक है, जां वो ये चीज़ लै चुकी सी, तो असीं परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज असीं हैज़ हैव इत्थे यूज़ नहीं करते। सो माई वाइफ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ एगो। ओके सो देयर विल बी एरर, हो सकता है इत्थे एरर। हाँ जी अगे ही वॉज इन सच हरी। तुसीं अक्सर पढ़िया होना अगर तुसीं लिटरेचर वगैरह जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इन सच तो बाद इत्थे अ आना हमेशा, सो इत्थे की सी एरर। ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही डिडंट वेट फॉर मी। इन सच अ हरी सच तो बाद। ओके सो ये इदां दे एग्जाम च क्वेश्चन आउणगे जिथे तुसीं एरर नूं स्पॉट करना। दैन नैक्सट वी हैव I have an appointment on the 9th September on 5 o'clock. मेरी अपॉइंटमेंट आ 9th September नूं on 5 o'clock पढ़िया नो at 5 o'clock, निश्चित समा at 5 o'clock। अगर तुसी प्रैपोजिशन दी थोड़ी जी नॉलेज लवोगे तो तुहानूं क्लीयर हो जू कि इत्थे at क्यों यूज़ होया। ओके सो टाइम इत्थे अगर असीं डिफाइन करना प्रॉपर टाइम डेफिनेट टाइम, ना उस तो 1 मिनट इधर ना उधर, तो असीं की यूज़ करते हैं एट। माई फादर गोज़ टू द ऑफिस 5 day week, नो एरर। देखो एक तो वध आ गई चीज़ 5 आ गई, तो इत्थे की यूज़ होगा वर्ड डेज, तो इत्थे साडे कोल एरर सी। ओके एग्जाम तुहानूं ए बी सी सेंटेंस डी इदां करके होगा, तुसीं कहना सी दे विच एरर स्पॉट करना भी कित्थे एरर आ सी दे विच। ओके दैन उन्होंने करैक्शन अगर लिखिया तुसीं करैक्ट भी करना। ओके माई फादर गोज़ टू द ऑफिस 5 days week। ओके सो इत्थे की होना डेज। मान लो तुहाडे कोल लिखिया होया वा 1 year, सही है, बट उत्थे लिखिया होया 2 year, वो गलत हो जाना, तो 2 years। ओके जिद्दां सेंटीमीटर हुंदा आपां लिखदे हां 1 centimeter ओके आ, पर अगर 7 centimeter होवे दैट विल बी रॉन्ग। 7 centimeters 7 kilometers। क्लियर, तो मोर दैन 1 नूं असीं हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, डेज ईयर्स। नैक्सट आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर। सो ये भी एक एक्सैप्शनल केस आ। असी आर्टिकल जिहड़ा द आ वो असी फिजिकल पोजीशनस नूं दस्सण लई जदों आपां कोई चीज़ स्पैसीफिक दसदे आ ना कि मैं टॉप फ्लोर ते रह रहा, मैं बॉटम फ्लोर ते रह रहा, मैं ग्राउंड फ्लोर ते रह रहा, मैं बेसमेंट विच रह रहा, तो फिजिकल पोजीशन, ठीक है, उन्होंने दस्सण लई असी किहड़ा आर्टिकल यूज़ करते हैं द। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, सो अ नहीं आऊगा क्योंकि अ सानू भी पता भी इनडेफिनेट आ, असी अ उहदे अगे यूज़ करते जिहदे बारे सानू पक्का नहीं पता हुंदा। हाँ जी इसनूं ध्यान नाल देखना एग्जाम्पल नूं। I told him bluntly that he is lazy fellow and that he had, here will be that he had done his work very badly। क्लियर होया, साडे कोल 5 sentences given ने। फर्स्ट है I told him bluntly, सेकंड है that he is a lazy fellow,
थर्ड है दैट ही हैड डन, फोर्थ हिज वर्क वेरी बैडली, फिफ्थ नो एरर। सो सब तो पहले तो एक रूल जानते हैं, लेट्स नो अबाउट द रूल। व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इन अ सेंटेंस, इनडायरैक्ट स्पीच की गल हो रही है, जी प्रिंसिपल क्लॉज होंगी है, मेन जी क्लॉज होंगी है, इज़ इन पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट दे विच आ, सो इत्थे प्रिंसिपल क्लॉज की है, आई टोल्ड हिम ब्लंटली, एक ही पास्ट चा, क्यों, क्योंकि टेल दी सेकेंड फॉर्म टोल्ड। देन when the principal clause in a sentence indirect is in past tense, the subordinate clause also must be in the past tense। देखो इन्हें समझो, इस गिवन स्टेटमेंट दे विच जो साडी प्रिंसिपल क्लॉज सी वो की सी, आई टोल्ड हिम, जो कि किहदे विच सी, पास्ट टेंस दे विच। सो ही तो बाद विच जिथे लिखिया ही इज़, दैट ही इज़ अ लेजी फैलो, ही इज़ आ गया, इज़ की आ प्रेजेंट, तो की होना चाहिए सी, पास्ट। दैन वी विल रिप्लेस ही इज़ विद ही वॉज। सो एरर लभ्या, सो एरर इत्थे सी ही इज़, क्योंकि साडी प्रिंसिपल क्लॉज की आ, पास्ट आ, इट मीनस जो साडी सबऑर्डीनेट क्लॉज आ दैट तो बाद विच वो भी की होनी चाहिए आ, पास्ट, बट ये की सी, प्रेजेंट। सो इत्थे एरर स्पॉट होया। नैक्सट वी हैव, मैं कुछ नोट डाउन किया कुछ चीज़ां, सपोज ईदर और, हुण देखो जां यह जां आह, जो असीं दो गल्लां विच जां पाउणी है तो इंग्लिश असीं लिखते हैं ईदर और, ओके। ईदर यू गो टू स्कूल और स्टे एट होम, ओके, ईदर यू गो टू स्कूल और स्टे एट होम, जां तुसीं स्कूल जा सकते हो जां घरे रहो, ओके। नीदर नॉर, नीदर ना असीं की यूज़ करते हैं, नॉर, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इदां दे आ जाए जिथे ईदर नाल नॉर लिखा हो सकता, नीदर ना और, तो उत्थे की होगा, एरर। नैक्सट नॉट ओनली बट, ना सिर्फ ये पर, जो असीं ये गल करें ना सिर्फ ये कला यही नहीं, ओके, पर आ भी उहदे नाल है, ठीक है। दैन वी विल यूज़ बट, नॉट ओनली दे नाल बट दा रिलेशन आ। इस तो इलावा नीदर नॉर का तो पता पंजाबी विच ना ये ना ओह, जिमें ईदर और है जां ये जां ओह, नीदर नॉर है ना ये ना ओह। इस तो इलावा जो साडे कोल है वो है, सपोज तुहानूं कोई देता 7 PM टू 9 PM, ये मूहरे पाता एंड 7 PM टू 9 PM, कोई समा 7 तो लैके 9 तक का, तो सानू पता इत्थे एंड नहीं आउंदा हुंदा फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, तो फ्रॉम ते टू दा भी एक रिलेशन आ, आई एम राइटिंग ओवर है, फ्रॉम ते टू दा भी एक रिलेशन आ। नैक्सट इदां भी तुहानूं एक प्रैपोजिशन दे उत्ते आ सकदा, उन्होंने पहला पूछा कैन यू काउंट द फ्रूट्स, कि तुसी फ्रूट्स काउंट कर सकते हो, हाउ मच आर इन द बकेट, भी बकेट्स किन्ने ने, बाल्टी विच किन्ने ने। हुण देखो सुनन विच तो थोड़ा सही लगता, कैन यू काउंट द फ्रूट्स हाउ मच आर इन द बकेट, बट अगर सानू मच का मीनिंग पता कि मच नूं असीं मच उहदे अगे लाउने जिन्हों असीं गिणिया नहीं जा सकता। सपोज खंड आ, असीं खंड मैनी नहीं कह के लैंदे, मच कह के लैंदे आ, ओके। दुध आ, असीं मैनी च नहीं उहनूं काउंट कर सकते, असीं उहनूं मच किन्ने किलो आ इदां, ठीक है, फाइंड करते। सो इत्थे आंसर की होना सी, मैनी, सो इत्थे की आ, एरर। हाँ जी, लास्ट मेरे को है, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान नाल देखना, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आ, जो एरर सिर्फ उन्होंने बच्चों को पता होएगा जिन्होंने डिग्रीज पढ़िया हुई ने, जिमें लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ओके, राइज, रोज, राइजन, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। जो राइज, रोज, राइजन आ वो वर्ब आ, मैं दोबारा दस दिंदी हाँ, वो कोई डिग्री नहीं हैगी, सो कन्फ्यूज़ नहीं होना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ओके, हाई, हायर, हाईएस्ट। सो इस तरीके ना जिन्होंने डिग्रीज पढ़िया हुई ने दे विल ईजीली फाइंड दिस, जो तुम डिग्रीज भी पढ़निया ने, ओके। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, कहते जिन्ना जल्दी वो कंप्लीट करूँगा उन्ना ही वड्डा उहदे लई प्रॉफिट होगा।
बट एक चीज़ ध्यान देना, आप एग्जाम्पल दे विच आई थिंक सो इन साइंस वी हैव ऑलरेडी रेड मैनी टाइम्स, लाइक वी हैव रेड दिस फ्रेज ही, not he, it will be the higher we go cooler it becomes, भी जिन्ना उच्चा असीं जाने उन्ना ही कूलर हुंदा, ओके COOLER आ कूलर, ओके। देखो इत्थे हायर लिखा ER नाल और एंड भी ER ना हो रहा, जिन्ना उच्ची जाने आ ते उन्ना ही ठंडा हुंदा, पर इत्थे फास्टर लिखा और इत्थे लार्जेस्ट, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, दिस इज़ एरर। सेम डिग्री च आंसर आना, फास्टर लार्जर, जिमें हायर कूलर। अगर इत्थे फास्टेस्ट लिखिया हुंदा तो इत्थे लार्जेस्ट आना सी, अगर इत्थे फास्ट लिखिया हुंदा तो इत्थे लार्ज आना सी, अगर इत्थे फास्टर लिखिया हो तो इत्थे की आना लार्जर, LARGER। आई एम राइटिंग ओवर हियर, क्लीयर। सो इदां दे क्वेश्चन दे विच एरर्स आएंगे। आई होप तुहानूं ये जिन्ने एरर्स कीते ने आपां प्रैक्टिस उन्होंने तुसी एक बार फिर देखोगे वीडियो नू, एंड सैकेंड तुसी इन्हां दे एडिशनल जो टॉपिक्स ने टेंस, एडजैक्टिव्स, एडवर्ब्स, उन्हां दा भी ध्यान रखना है, बिकॉज वो तुहानूं इत्थे सिर्फ एरर स्पॉटिंग च काम नहीं आउणगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स विच भी काम आउणगे। क्लीयर। हैव अ ग्रेट डे।